Welcome to Inert Chemistry. In today's video, we are discussing DNA. Our body has a well-developed system to repair the DNA because you know that DNA is actually contains genetic information that is transferred from parents to offspring. So therefore, our body have a very well-developed system for the repair of any damage in your DNA. This damage, it may either due to any chemical change or it may be spontaneous. Means it may be spontaneous or it may be due to any agent like mutagen. The repair, it is very possible. It is possible because usually one strand of DNA is damaged, and the other strand always act as a template and it direct the repair system of damaged parts. The first mechanism that we see here, it is called as the base excitation repair mechanism. You know that in our normal DNA, G is always complementary to C or cytosine. But due to deamination reaction, this G is converted to uracil. Means uracil is formed by the deamination of cytosine. So this is the problem. And this problem is removed by the mechanism that is called base excitation repair mechanism. Uracil DNA glycosylase enzyme, it is actually break down the glycosidic bond that is formed between the ribose sugar and nitrogenous base. You know that the nitrogenous base is attached to the ribose sugar by glycosidic bond. This uracil DNA glycosylase enzyme, it hydrolyze this bond between the nitrogenous base and ribose 5-phosphate, and this uracil is released from here. Means this is the region of your DNA that do not contain any nitrogenous base. This region is called as AP site. It is that particular region of your DNA from which the nitrogenous base is removed, and it is called AP site. Now there are special type of proteins or enzymes present in your DNA that are called AP endonucleases. These AP endonucleases, they cut your DNA from AP sites and thus causes or produce a nick. Nick means a small cut in your DNA. So these AP endonucleases, they cut your DNA from AP site and produces a small nick here. Then polymerase enzyme comes. You know that polymerase enzyme is the enzyme that is involved in DNA replication. So it comes here, it produces a normal DNA, and then by the help of ligase enzyme, these two parts that cut from each other, they are again rejoined. And so this is one of the mechanism to repair your. So the second mechanism that we studied, it is the nucleotide excision repair. This is also very important mechanism, and it is used. This system repairs the bulky problems in your DNA that causes large distortion in the double helix. Means when there's a big problem or big damage in your DNA, then this type of nucleotide excision repair is used. What happens in this repair mechanism? An unusual endonuclease and एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है. उस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है UVR ABC endonuclease complex. What's the name of that enzyme? Its name is UVR ABC endonuclease complex. और इस complex को ये नाम क्यों दिया गया? Because of genes. इसकी जीन्स की वजह से जो ये एंजाइम बनाती हैं, इस एंजाइम को बनाने के लिए जो जीन्स हैं उनकी बुनियाद पर इसको ये नाम दिया गया UVR ABC एंडोन्यूक्लियस. ये एंजाइम क्या करता है जी? ये एंजाइम उस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको हम लेजन बोलते हैं. ठीक है, आपको पता है जी कि जहाँ पे DNA के अंदर जहाँ कहीं पे भी जो है वो प्रॉब्लम होगी, जहाँ कहीं पे भी डैमेज होगा, वहाँ पे आपकी DNA की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी.
और वहाँ पे एक जो है वो लेयन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूवीआर एबीसी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है कि ये उस लेयन साइट से जो है लेयन साइट के से करीब आपके डीएनए को कट करता है। जी, तो ये आपका जो ये स्पेशल टाइप का जो आपके पास एंजाइम है यूवीआर एबीसी एंडोन्यूक्लियस, ये क्या करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तो जो लेयन वाला आपका डीएनए है, लेयन वाला स्टैंड है, उसको काटेगा। और कहाँ से काटेगा? फिर अगर हम 5 प्राइम साइड की बात करें तो 7th 5 प्राइम साइड की तरफ से जो 7th फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा उसको काटेगा। और 3 प्राइम साइड की तरफ से आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि आपके 7th साइड और 3 प्राइम साइड की तरफ से जो 4th फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको काटेगा। आप जानते हैं कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं, वो दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की तरह की मदद से जो है वो जुड़े होते हैं। तो ये क्या करेगा कि लेयन वाले स्टैंड को 5 प्राइम की तरफ से 7th फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और 3 प्राइम की तरफ से 4th फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जो है वो 2 कट्स लगाएगा आपके डीएनए को। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं जी कि ये क्या करेगा। यूवीआर एबीसी एंडोन्यूक्लियस ये लेयन वाला जो स्टैंड है उसको काटेगा 5 प्राइम एंड की तरफ से 7th फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और 3 प्राइम एंड की तरफ से 4th फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है उसको क्लीव करेगा। और इस क्लीवेज की वजह से आपके डीएनए के अंदर 2 कट्स जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका सारे का सारा ये पार्ट है जो कि डैमेज्ड है उस सारे को रिमूव कर दिया जाएगा आपके डीएनए से। इसी चीज़ को जो है वो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का बाहर निकल जाना। और बाद में यहाँ पे ये गैप आ जाएगा। इस गैप को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि रेप्लिकेटिंग एंजाइम है उसकी मदद से यहाँ पे दोबारा से डीएनए जो है वो बन जाएगा और आपका जो लाइगेज एंजाइम है इन दोनों पीसेस को जोड़ देगा। जी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी आपके पास रिकम्बिनेशन रिपेयर। रिकम्बिनेशन से क्या मुराद है? रिकम्बिनेशन बोलते हैं जी कि डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है आपके डीएनए के दो डीएनए जब आपस में अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं तो इसको हम रिकम्बिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा हुआ जी, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है और उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने डीएनए के सेगमेंट्स को जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो रिकम्बिनेशन भी जो है वो सेम इसी तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर आपके डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो रिकम्बाइन करते हैं विद ईच अदर। ठीक है, और इस मैकेनिज़्म को भी रिपेयर सिस्टम के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। इस तरह का मैकेनिज़्म आमतौर पर उस वक्त यूज़ होता है जब आपका डैमेज डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। ठीक है, आपका डैमेज डीएनए जो है वो जल्दी से रेप्लिकेट कर जाता है इससे पहले कि आप उसको रिपेयर कर सकें। रिपेयर करने आपको रिपेयर करने का मौका ही नहीं देता अपने आप को और वो जल्दी से जो है वो रेप्लिकेट कर जाता है। तो इस तरह के प्रोसेसेस के अंदर फिर बाद में हम रिकम्बिनेशन रिपेयर का जो मैकेनिज़्म है वो यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है जी कि जब आपका जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम है जब वो रेप्लिकेशन कर रहा होता है तो वो उस डैमेज्ड एरिया की रेप्लिकेशन नहीं करता और जो डॉटर डीएनए आपके पास बनता है उसके अंदर उस डैमेज्ड पार्ट की जगह जो है वो एक गैप रह जाता है। आप जानते हैं कि जो है वो आपका जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम है वो पेरेंटल डीएनए को देखते हुए जो है वो रेप्लिकेशन कर रहा होता है। तो जब वो देखता है कि पेरेंटल डीएनए के अंदर कोई डैमेज है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया की रेप्लिकेशन नहीं करता और उस जगह पे एक स्मॉल गैप जो है वो रह जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ये जो दूसरा स्टैंड है आपका जो दूसरा पेरेंटल स्टैंड है वहाँ पे वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या होता है जी कि ये जो दूसरा पेरेंटल स्टैंड है इसके अंदर यहाँ पे कट लगाया जाता है। ठीक है, और इससे ये पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए जो है वो रिमूव करके इस
डॉटर डीएनए के अंदर जो गैप्ड डॉटर डीएनए स्टैंड है उसके अंदर वहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये जो दोनों डॉटर जो डीएनए स्टैंड्स हैं वो बिल्कुल ठीक बन गए हैं। ठीक है, दोनों डॉटर डीएनए स्टैंड मुकम्मल तौर पे बन गए हैं और इनके अंदर किसी किस्म का कोई भी जो है वो जो आप कह सकते हैं कि डैमेज डीएनए डैमेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ये जो आपका जो ये एक पेरेंटल स्टैंड है जिसने अपनी कुर्बानी दी है, जिसने अपना पीस डीएनए का निकाल के इसको दे दिया, अब इसका क्या होगा? इसका अब क्या होगा जी, इसका अल्लाह मालिक है। इसमें यह होगा कि इसमें आपका जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम है वो अपना रोल प्ले करेगा। और आप जानते हैं कि ये आपके पास अब ये जो डॉटर स्टैंड इसका बना है ये टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा, ये सांचे के तौर पे काम करेगा और आपका रेप्लिकेटिंग एंजाइम इस डॉटर स्टैंड को देखते हुए यहाँ पे जो है वो दोबारा से इसकी रेप्लिकेशन करके इसके गैप को फिल कर देगा और देन लाइगेज एंजाइम आएगा और लाइगेज एंजाइम इसके दोनों सिरों को आपस में जोड़ देगा। तो इस तरह से ये रिकम्बिनेशन रिपेयर प्रोसेस, ये भी एक तरह का जो है वो डीएनए रिपेयर प्रोसेस है। तो अब आपने दोबारा से जो है वो इसको जल्दी से रिपेयर कर लेना है, इससे पहले कि ये दोबारा फिर से रेप्लिकेशन करे और दोबारा से आपको ये सारा काम करना पड़े। तो ये जो इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम है आपके स्टैंड के अंदर, इसको दोबारा से आपने जो पीछे हमने तरीके पढ़े हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज के थ्रू या बेस एक्सचेंज के थ्रू, आप उसमें से कोई भी तरीका लगा के आप इसको जल्दी से जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। इस के जो है वो 2 और भी आपके पास टॉपिक हैं डीएनए को रिपेयर करने के, ठीक है, लेकिन वो हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वी विल सून कम विद अनदर वीडियो।